So what were we discussing in last class? What did we start? Did you all go through the tree traversal we had discussed? Any problems in that? Yes. Tree traversal समझ में आ गई था? Pre order, post order, in order. Is it clear? Okay, we'll just go through another example, recall few things before proceeding. We will see how tree traversal will be able to help you for evaluation of your arithmetic expressions. Okay, if you have a tree which is created in such a way that all your leaf nodes represent your operands. Okay, we have an expression. What is the expression? A plus B multiplied by C minus D divided by F. Okay, this is your arithmetic expression. We are representing it in the form of a binary tree. Okay, what was a binary tree? Any tree which is having not more than 2 children. All right, 2 child nodes, 2 subtrees it will have every node, not more than that, 0, 1 or 2. Okay, so degree of any node is maximum 2, right? So here we are trying to evaluate an algebraic expression with the help of your binary tree. We're going to represent it, and when we go in our infix and when we traverse this tree in the in order traversal, okay, then what do? We get your infix notation. If you remember, when we are discussing about algebraic expressions in stack, how your prefix, postfix, your also known as your Polish notation and reverse Polish notation, they are more useful in evaluation of your arithmetic expressions, because there you do not need to consider the precedence of the operators, or you also don't need to have to check with the associativity, right? If they are of same precedence, then whether you have to read from the left side or from the right side, right? So here what we are going to do in this in this particular thing, we'll see that if you traverse this tree in an in order manner, the notation, the result which you get, right, when you're printing the nodes as you are traversing, result which you get is an infix notation, right? When you traverse it in pre-order and post-order form traversals, then you will be getting your prefix and postfix notation. All right. So infix, what it is? Infix is your left, root, right, right? You go to the left subtree, then you print the left child, then you come to the root, then you move towards the right. That is your infix, right? So if you go for the infix traversal, sorry, your in order traversal, what do we get? सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? We'll be moving towards your left, right? Infix, sorry, आपका in order traversal यही तो रहता है in order में. It is your left, root, right. ठीक, तो हम सबसे इस आपका रूट आए, स्टार पे गए, यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट? यू विल बी गेटिंग ए, ठीक, लेफ्ट, देन रूट, देन राइट. All right. Then what it is? Your left, then root, then right. Okay. Now in right, what we'll do? We will go first into your left subtree, that is C, left, then root, which is your minus sign, then right. Okay, in right also it has having subtrees. It is done in a recursive way, so you have to go further down. What you will get? You'll get D, then root, which is divide sign, and right, which is F. All right, so if you traverse this particular algebraic expression with the help of your in order traversal, if you do, you will be getting the infix notation, and if you do in pre-order and post-order, then you will be getting your prefix and postfix notation respectively. Is it clear this much? इतना तो हमने शायद last class में discuss करा था. Is it clear, class? Yes. ठीक है, इसका थोड़ा सा implementation देखते हैं before going ahead. Can you all view this code? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल को थोड़ा सा देखेंगे, हाउ वी कैन traverse a binary tree, and you have two approaches for it. What are the two approaches?
आप अगर आपको स्टैक में याद हो तो हमने देखा था कि there was a concept of recursion. What is recursion? A function calling itself. What is recursion का alternative? हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास iteration रहता है. iterative मतलब looping करके, ठीक. Even though your recursion थोड़ा सा memory wise आपका ज़्यादा costly पड़ता है because you'll be needing a stack data structure for putting your calls there, and from returning you have to pop out those calls. But उससे हमारी number of steps थोड़े से reduce हो जाते हैं. So if we'll be trying to implement your binary tree traversal with the help of recursion, ठीक, अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, we have to binary tree है, तो इसमें क्या रहेगा, you will be having a node, right, which will have a data part, and then you will have your left and you will have your right child. ठीक, तो आपने एक struct node declare करा जिसका data है, and you have your left child and your right child. This is also what it is, a pointer type of a variable. तो दिस विल बी होल्डिंग अ रेफरेंस टू सम अदर नोड्स. ठीक, ऐसे तो आपका ट्री बनता है, तो हमने इम्प्लीमेंटेशन पहले भी देखा था इन योर प्रेजेंटेशन. ठीक, फिर हम क्या करेंगे, हम कोई नोड को अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लिंक लिस्ट में करते थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ठीक, malloc or size of struct node. Your struct node is having two links, one is for the right child, the other is for the left child. ठीक, इसमें आपको जो डेटा सेट करना है आप उसके नोड के डेटा पे डेटा सेट कर दें, और लेफ्ट और राइट चाइल्ड इसके क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे. दिस कोड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ नोड. ऑलराइट, देन व्हाट वी हैव, आप इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करेंगे. प्रिंट हमारा अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर में आपका क्या रहता है, पोस्ट ऑर्डर इज योर लेफ्ट, राइट, देन रूट. ठीक, ऐसे ही तो रहता है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. इज इट क्लियर क्लास? प्लीज रिस्पॉन्ड. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे. कैसे करेंगे कि हमें क्या आपको बताया, तो ये तो बोला था कि आपको पूरा सब ट्री ट्रैवर्स करना पड़ता है रिकर्सिव वे में. रिकर्सिव वे में मतलब हर एक नोड के नीचे जो भी सब नोड्स हैं, उसके जो भी चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है, वहां पे भी आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही रिपीट होगा. ठीक, कब तक होगा, जब तक आप लीफ फ्लोट पे ना जाओ, फिर वापस आप रूट पे आओगे, देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट. अगर ये इन ऑर्डर की बात करी जाए, पोस्ट ऑर्डर में क्या रहेगा, पहले आप लेफ्ट ट्रैवल करोगे, फिर पूरा राइट ट्रैवल करोगे, देन रूट पे आओगे. बट ये हमारा रिकर्सिव वे में रहता है, जो चीज आप रूट पे परफॉर्म करेंगे वही काम आपको हर एक नोड पे परफॉर्म करना है, यही आपको ऑर्डर फॉलो करना है. ठीक, तो पोस्ट ऑर्डर में क्या रहता है, वी हैव टू ट्रैवर्स द कंप्लीट लेफ्ट सब ट्री, देन वी हैव टू ट्रैवर्स द कंप्लीट राइट सब ट्री, राइट, एंड देन वी हैव टू प्रिंट द रूट. ठीक, तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्री बना है, हमारा ट्री कैसा है, this is 1, it has 2 child 2 3, further 2 has 2 child 4 and 5. ठीक, ये हम नोड्स क्रिएट कर रहे हैं. ठीक, तो हमने क्या करा, न्यू नोड 1 क्रिएट करा, इसका लेफ्ट चाइल्ड हमने क्या बनाया, रूट के लेफ्ट में हमने न्यू नोड 2 बनाया, ये हमारा एक नोड क्रिएट हुआ. ठीक, रूट के राइट में हमने दूसरा नोड क्रिएट करा 3. ठीक, फिर रूट के लेफ्ट में, दिस इज योर रूट. ठीक, इसके लेफ्ट के फॉर लेफ्ट में पॉइंटर्स आपके यूज हो रहे हैं, आपने 4 डाला. ठीक, और रूट के लेफ्ट के राइट में हमने क्या डाला, हमने 5 रखा. ठीक, नाउ व्हेन वी आर ट्रैवर्सिंग इन द पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे, प्रिंट पोस्ट ऑर्डर नोड लेफ्ट. ठीक, अच्छा, सबसे पहले चेक क्या करना है, क्या नोड नल है, जो भी आप यहाँ पे सबसे पहले क्या पास करोगे, रूट पास करोगे. रूट में हमारा क्या वैल्यू 1 है. ठीक, 1 हमारा नल नहीं है, सो व्हाट विल डू, we will send a recursive call to the function itself. recursive मतलब दोबारा से यही फंक्शन कॉल होगा. ठीक, अभी हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, we are going back to it. ठीक, तो what it will do, again it will call the function, right. अब हमारा यहाँ पे क्या पास होगा, रूट का लेफ्ट, यानी ये इस जो आपका पॉइंटर रहेगा 2, this will be passed, right. now this will send another call to your print post order. क्या अभी आपका नोड नल है, नहीं है, तो what it will do, फिर से आपका प्रिंट पोस्ट ऑर्डर दोबारा कॉल होगा. कब होगा, अब उसमें आप क्या पास कर रहे हो पैरामीटर, योर न्यू नोड. देखिए पहली बार आपने जब पोस्ट ऑर्डर कॉल करा था तो आपने जो रूट नोड है वो पास करी थी. ठीक, रूट नोड मतलब क्या हो गया, 1. ठीक, डेटा वैल्यू उसकी क्या है, 1. ठीक, उसके बाद आपने क्या करा, प्रिंट ना करके आपने दोबारा से एक रिकर्सिव कॉल भेजी. किसे भेजी, आपने एक और फंक्शन कॉल करा, फिर सेम फंक्शन को, लेकिन इस बार आपका रूट क्या है, जो पुराने रूट का लेफ्ट चाइल्ड था. यहाँ पे पुराने रूट का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 2 है, डेटा वैल्यू उसकी क्या है, 2 है. ठीक, आपने 2 को पास करा, फिर आपने क्या करा, दोबारा से
यू हैव टू, नल है आपका नोड, नहीं नल है तो आप फिर से आपने एक रिकर्सिव कॉल भेजी, किसे भेजी, सेम फंक्शन को। ठीक, यू आर मूविंग टूवर्ड्स, आप इसको इटरेशन के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन इटरेशन में आपको क्या करना पड़ता, एक स्टैक यूज करना पड़ता वैल्यूज को पुट करने के लिए, और आप फिर दोबारा पॉप आउट करते, तो उससे इजी हमें थोड़ा रिकर्शन पड़ता है, तो रिकर्शन को थोड़ा देखिएगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, वी हैड डिस्कस्ड रिकर्शन व्हेन वी वर डिस्कसिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, और फिबोनाची, इन सब में हम रिकर्सिव कॉल्स के थ्रू भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इटरेशन। ट्री के ट्रैवर्सिंग में रिकर्शन थोड़ा और इजी पड़ता है। ठीक, मतलब इजी इन द सेंस नंबर ऑफ स्टेप्स कम लिखने पड़ते हैं, समझना आसान रहता है। तो हम क्या करा, हमने पोस्ट, आपने फंक्शन कहाँ तक गया, आपने 2 गया, 2 के लेफ्ट में दोबारा से कॉल करा तो क्या आया, आपका 4 आया। ठीक, 4 का लेफ्ट क्या है, 4 का लेफ्ट नल है, तो जैसे ही नल होगा हम इसको रिटर्न करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इट विल दिस विल रिटर्न, इट विल रिटर्न टू योर प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक, तो ये क्या करेगा, इट विल बी प्रिंटिंग लेफ्ट रूट, इट इज योर पोस्ट ऑर्डर में आपका क्या रहता है, लेफ्ट देन राइट देन रूट। ठीक, तो इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल प्रिंट द नोट्स डेटा, यानी 4 आपका प्रिंट होगा, राइट। देन व्हाट इट विल डू, अब ये राइट ट्रैवर्सल करेगा। ठीक, इट विल बी गोइंग बैक, अब ये रूट पर आया, 2 पर आया। ठीक, अब इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज व्हाट, नोट का राइट, नोट का राइट क्या है आपका, दिस विल बी मेकिंग अ कॉल टू योर, this will be making a call to your next statement. What is that next statement, your note का right। ठीक, तो यहाँ पर आएगा, it will be moving towards your it will return to here। ठीक, अब इसके right का next statement जो है उसको ये कॉल करेगा। ठीक, तो आपका क्या होगा, it will be calling your post order the right child। right child क्या है आपका 5 है। ठीक, right child दोबारा से कॉल गया है, यहाँ पे नोट क्या है, इसके बाद क्या है इसका इसका कोई आपका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट, इट विल बी इक्वल टू नल बिकॉज इट इज हैविंग नो लेफ्ट चाइल्ड। यहीं से आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा आपका प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक, एंड देन इट विल बी गोइंग बैक टू द स्टेटमेंट, राइट। तो हमने क्या करा, इस ट्री का लेफ्ट नोड सब ट्री पूरा ट्रैवल कर लिया, राइट सब ट्री पूरा ट्रैवल कर लिया। अब हम कहाँ आएंगे, हमारी रिकर्सिव कॉल 2 पर आएगी। ठीक, फिर क्या होगा, अब you have this statement is executed, this statement is executed, now it will do, it will simply print the nodes data। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। तो this is your left sum tree completely travel। now what it will do, it will आपके रिकर्सिव कॉल का बैक जाएगा, रिटर्न होगा। ठीक, जो आपने कॉल भेजी थी उसका रिटर्न होगा। then what it will do, now it will be moving towards the next statement। what is your next statement, नोड का राइट। ठीक, तो आपका 1 के राइट में जाएगा, 1 का राइट क्या है 3 है। ठीक, अब दोबारा कॉल किया इन द नोड्स राइट चाइल्ड। ठीक, अब यहाँ पे हमारा रूट क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, हम क्या करेंगे, दोबारा से कॉल भेजा हमने, प्रिंट पोस्ट ऑर्डर नोट का लेफ्ट। ठीक, अब नोट का लेफ्ट पे क्योंकि कोई और आगे वैल्यू नहीं है, नल है, तो इट विल रिटर्न फ्रॉम देयर। ठीक, रिटर्न होगा तो हमारा प्रिंट होगा डेटा, इट विल प्रिंट द डेटा एज 3। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, नाउ इट विल बी गोइंग बैक टू, जो हमने कॉल किसे भेजा था, इसके राइट चाइल्ड को भेजा था। अब ये कॉल यहाँ से हमारा वापस आएगा, वापस से हम अपने रूट पर आ जाएंगे। ठीक, हमने लेफ्ट चाइल्ड इसके रूट के लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रेवल कर लिया, राइट सब ट्री को पूरा ट्रेवल कर दिया। अब सिंपली क्या हो गया, हमारा थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो हमारे रूट के डेटा को प्रिंट करे। ठीक, तो इस तरह से हम रिकर्शन के थ्रू ये सारे ट्रैवर्सल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल है। अगर आपका नोड नल है, जैसे यानी आप, या नल कब होगा, जब आपका तो रूट ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या आप ट्रैवल करते करते लीफ नोड तक पहुंच गए। लीफ नोड तक आप जैसे ही पहुंचोगे, इन दैट केस इसका लेफ्ट या राइट जो भी होगा, इट विल बी नल, सो इट विल स्टार्ट रिटर्निंग फ्रॉम देयर। तो वी विल बी प्रिंटिंग द नोड। तो आप पहले पूरा लेफ्ट चाइल्ड सब ट्री को पूरा ट्रैवल करिए, फिर राइट सब ट्री को पूरा ट्रैवल करिए। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, रिकर्सिव कॉल भेज रहे हो सब ट्री के अंदर। ठीक, लेफ्ट सब ट्री देन राइट सब ट्री, देन यू विल बी प्रिंटिंग द डेटा। ठीक, अगर यही चीज इन ऑर्डर के लिए करी जाए, इन ऑर्डर का मतलब क्या रहता है, इट इज योर लेफ्ट चाइल्ड देन योर रूट नोड एंड देन योर राइट चाइल्ड। ठीक, तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि पहले आप प्रिंट
इन ऑर्डर रिकर्सिव कॉल भेज रहे हो लेफ्ट सब ट्री के ऊपर, ठीक। लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवल, जैसे हमारे नोड है, ठीक, यहाँ पे कुछ नोड्स है, फिर ये राइट सब ट्री है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट इन ऑर्डर नोड लेफ्ट, जो भी आपका रूट नोड है उसके पूरे लेफ्ट सब ट्री को हम ट्रैवल करेंगे, ठीक। लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवल करते करते जब तक हम लीफ नोड पे ना आ जाए, ठीक। जैसे हम लीफ नोड पे आएंगे वी विल बी we will be printing that node, ठीक। तो हम क्या करेंगे, we will be printing the left child, right, data in that particular leaf node जो left of that node है, ठीक। then we'll get a return from it, then what it is, then your second statement will be executed जो क्या करेगा, जो आपके root को print कर रहा है। फिर आप क्या करोगे, दोबारा रिकर्सिव कॉल भेजोगे राइट चाइल्ड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज ट्रैवर्सिंग द कंप्लीट लेफ्ट सब ट्री, फिर उस नोड पे आइए, उस नोड के डेटा को प्रिंट करिए, फिर आप क्या करेंगे, राइट सब ट्री को करेंगे। तो ये तो आपका इन ऑर्डर में रहता है कि पहले आप लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवल प्रिंट करते हुए जाइए, फिर आप रूट को प्रिंट करें, फिर आप राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करते जाएं। और जैसे ट्रैवर्स करते जाएंगे आपका ये रिकर्सिव है, तो उसी ऑर्डर में ये प्रिंटिंग भी करेगा। जब प्री ऑर्डर की बात करी जाती है, प्री ऑर्डर में क्या रहता है, बस थोड़े से चेंजेस हैं तीनों के ट्रैवर्स में। क्या है प्री ऑर्डर में, इट इज योर रूट देन लेफ्ट देन राइट, ठीक। तो पहले सबसे पहले जैसे ही आपको नोड मिलती है, जैसे ही कोई नोड मिलता है उसको हम एज इट इज प्रिंट कर देते हैं, यही प्री ऑर्डर में रहता है। पहले नोड को प्रिंट करा, फिर क्या करेंगे, उसके लेफ्ट दिस वॉट एवर इज योर रूट नोड, मान लिया आपका ऐसा ट्री है, तो पहले क्या करेंगे, प्रिंट नोड डेटा, जो ऐसे जो भी नोड पे, जो रूट नोड पे वैल्यू पड़ेगी उसको प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम लेफ्ट ट्री को ट्रैवर्स करना करेंगे, कैसे, इन योर रिकर्सिव वे ओनली, ठीक। तो जैसे लेफ्ट ट्री पे आए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जो रूट में वैल्यू पड़ी होगी इस सब ट्री की, ये पहले प्रिंट होगी। देन व्हाट इट विल डू, इट विल गो फर्दर डीपर, रिकर्सिव कॉल जाएगी नेक्स्ट इसके लेफ्ट चाइल्ड पर, ठीक। जैसे ही जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आप इसको रूट को प्रिंट करो। तो यू हैव टू प्रिंट द रूट देन ट्रैवल लेफ्ट, राइट। फिर आप लेफ्ट ट्रैवल करते करते जब आप लीफ नोड तक पहुंचो, देन व्हाट यू विल डू, आप फिर राइट ट्रैवर्सल स्टार्ट करोगे उस नोड के राइट। पहले ये आप लेफ्ट पे नोड की वैल्यू प्रिंट करी, ठीक। उसके बाद आप उसके राइट पे जाओ, सॉरी लेफ्ट पे जाओ, ठीक। लेफ्ट के जो सब ट्री है उसकी वैल्यू प्रिंट करो, फिर उसके लेफ्ट में जाओ, ठीक। उसका जो सब ट्री है उसमें जो वैल्यू उसको प्रिंट करो, देन यू फर्दर गो टुवर्ड्स लेफ्ट, जो भी वैल्यू नल तक पहुंचकर रिटर्न होगा इट विल बी प्रिंटेड हियर। नाउ व्हाट यू विल डू, उसके बाद आप इसका राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हो, ठीक। तो इन दिस केस आप इसकी वैल्यू पहले प्रिंट करोगे, ये पूरा लेफ्ट इसका कंप्लीट हो गया, रूट आपने पहले ही प्रिंट करा था, तो अब आप इसके राइट चाइल्ड, आपका कॉल जाएगा राइट चाइल्ड के लिए। देन दिस कंप्लीट योर लेफ्ट सब ट्री इज ट्रैवल्ड, राइट। रूट आप पहले ही प्रिंट कर चुके हो, देन यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स द राइट सब ट्री। तो ये आपका रिकर्शन के थ्रू आप कैसे बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिंपल है कि अगर पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो पहले आप पूरे लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिव वे में ट्रैवल करिए, ठीक। फिर उसके लेफ्ट सब ट्री के जब लीफ तक पहुंचिए, तो लेफ्ट जो मोस्ट आपका नोड रहेगा उसको प्रिंट करें, ठीक। देन व्हाट यू विल डू, यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स द राइट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री को पूरा ट्रैवर्स करें और उसके एंड में आपका नोड प्रिंट होगा। तो इट इज लेफ्ट ट्रैवर्सल रिकर्सिव कॉल, ठीक। देन राइट रिकर्सिव कॉल फंक्शन का, ठीक। फिर आप नोड के डेटा को प्रिंट करिए, नोड मतलब रूट के, जो भी उस सब ट्री का रूट होगा। तो पहले लेफ्ट चाइल्ड पूरा सब ट्री को ट्रैवर्स करें, फिर राइट सब ट्री को पूरा ट्रैवर्स करें रिकर्सिव कॉल कर करके, उसके बाद आप रूट सब ट्री के रूट नोड को प्रिंट करें, ठीक। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या रहेगा, इन ऑर्डर में यू हैव टू ट्रैवर्स द कंप्लीट लेफ्ट सब ट्री, पहले पूरे लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करें, ठीक। उसके बाद आप जैसे इसमें क्या है, ये आपका रूट नोड है, तो इसके पूरे लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करें, फिर आप लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू को मतलब यहाँ पे प्रिंट करें। यहाँ पे क्या होगा, फिर रिकर्सिव कॉल जब यहाँ पहुंचेगा, दिस विल बी द रूट नोड, इसके यहाँ पे दोनों साइड नल है, ठीक। इसके लेफ्ट और राइट साइड नल है, तो ये दोनों रिटर्न करेगा, तो यू विल बी प्रिंटिंग प्रिंटिंग इट्स वैल्यू, राइट। आपने इस रूट यहाँ पे इस सब ट्री के लिए ये रूट नोड होगा, इसकी वैल्यू आपने प्रिंट करी, ठीक। देन योर रिकर्सिव कॉल विल रिटर्न, राइट, वेयर इट विल रिटर्न, इट विल बी रिटर्निंग टू द रूट,
ठीक, इस रूट पे जो वैल्यू पड़ी होगी इसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट व्हाट इट विल डू, अब इसके राइट चाइल्ड पे जाएगा, राइट चाइल्ड पे जाएगा तो दिस इज नाउ, अब दिस विल बी एक्टिंग एज योर सब ट्री। यहाँ पे क्या है, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल है, तो रिटर्न कर जाएगा, तो इट विल बी प्रिंटिंग दिस, जो यहाँ पे आपको प्रिंट स्टेटमेंट है इस नोड की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक, फिर ये लेफ्ट सब ट्री जब पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, then what it will do, it will be printing the value at the root node। ठीक, ये इसका रूट नोड है, रूट नोड की वैल्यू प्रिंट करेगा। इन ऑर्डर में ये तो रहता है आपका लेफ्ट, रूट, देन राइट। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिव कॉल के थ्रू पूरा प्रिंट करिए। ठीक, फिर आप नोड को नोड जो आपका रूट नोड है उस सब ट्री का उसको प्रिंट करिए। फिर आप इसके राइट सब ट्री का ट्रैवर्सल रिकर्सिव कॉल के थ्रू ये रिपीट करते हुए हर टाइम क्या होता है, जैसे आप एक रूट नोड उठाते हो उसका जो सब ट्री है, राइट, उस सब ट्री का जो इसका जो चाइल्ड इमीडिएट चाइल्ड होगा वो सब ट्री का रूट नोड बन जाएगा। तो इस तरह से हम रिकर्शन के थ्रू आपके ट्री ट्रैवर्सल की एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इफ यू एग्जीक्यूट दिस, कैन यू ऑल व्यू द आउटपुट? यस मैम। राइट, तो आपकी जो ट्री बनी थी क्या थी आपका, इट वाज आई थिंक फर्स्ट नोड वाज आपका ट्री में था, फर्स्ट 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था। ये आपके ओरिजिनल, आपने अपने रूट अपनी ट्री को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करा था। ठीक, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, प्री ऑर्डर में इट इज योर रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। ठीक, तो पहले क्या होगा, रूट प्रिंट होगा, यानी हमारा क्या था, सबसे पहले आप क्या करते थे, प्रिंट एफ जो भी रूट है उसके डेटा को। ठीक, ये तो आपका स्टेटमेंट था पोस्ट प्री ऑर्डर में। ठीक, तो रूट के डेटा को क्या आपने 1 को प्रिंट करा। फिर क्या करेंगे, योर लेफ्ट, अब इस लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, प्री ऑर्डर में। उसके बाद आप क्या करते थे, एक और कॉल भेजते थे, रिकर्सिव कॉल सेम फंक्शन को, लेकिन अब क्या उसका रूट क्या बन जाती थी, जो ओरिजिनल रूट थी 1 उसका लेफ्ट। ठीक, तो अब यहाँ पे अब ये हमारा सब ट्री बन जाएगा। इस सब ट्री को भी हम प्री ऑर्डर वे में ही ट्रैवर्स करेंगे। ठीक, उन्हीं को रिकर्सिव कॉल्स आप भेजोगे। ठीक, तो फिर क्या होगा, फिर आपका प्रिंट योर रूट। ठीक, आपने रूट को प्रिंट करा, तो यहाँ पे रूट क्या है, इस सब ट्री के लिए रूट 2 है, तो 2 प्रिंट होगा। फिर आपके रिकर्सिव कॉल जाती है फर्दर इसके लेफ्ट चाइल्ड पे। यहाँ पे हमारा लेफ्ट चाइल्ड 2 का क्या है, 4 है। ठीक, तो ये इट विल बी प्रिंटिंग द, अब ये हमारा सब ट्री बन जाएगा। इस सब ट्री के कोई चाइल्ड नोड्स है ही नहीं। ठीक, क्योंकि ये हमारा लीफ नोड था ओरिजिनल ट्री का, तो इट विल बी प्रिंटिंग द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर लेफ्ट नोड, यानी 4 प्रिंट होगा। फिर इसके ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो ये पूरा का पूरा ट्री, ये सब ट्री आपका ट्रैवल हो गया। नेक्स्ट व्हाट इट विल डू, रूट, देन लेफ्ट, लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, रूट आपने पहले ही प्रिंट कर दिया था 2, अब राइट। ठीक, राइट में आएगा आपका ये तो था। फिर व्हाट यू यूज टू डू, प्री ऑर्डर, रूट, राइट, रूट के राइट में हम जाते थे। तो इस सब ट्री के लिए हमारा ये जो हमारा सब ट्री था, क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स है ना, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो इधर गए थे, इधर से अब आएंगे तो अब रिटर्न होके 2 पर आएगा। वी विल बी ट्रैवलिंग द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में अब हमारा जब ये रूट हुआ तो विल बी प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ दिस रूट। राइट नाउ यहाँ जब ये पूरा सब ट्री हमारा ट्रैवल हो गया तो हमारा रिकर्सिव कॉल रिटर्न होकर हमारे ओरिजिनल रूट पर आएगा। ठीक, यानी 1 पे रूट की वैल्यू हम पहले प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या है, print root data, then move towards the left subtree, then move towards the right subtree। ठीक, तो लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो गया यहाँ तक रूट, और जैसे जैसे ट्रैवर्स होते पहले हम रूट को प्रिंट करते थे, अब हम राइट सब ट्री पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पे भी रिकर्सिव कॉल हो गए। अब ये एक सब ट्री की तरह एक्ट करेगा जिसके कोई भी चाइल्ड नोड्स नहीं है, तो एक ही वैल्यू है, यही आपकी 3 प्रिंट होगी और रिटर्न होके आप वापस से मेन मेथड पे जहाँ पे आपने प्री ऑर्डर को कॉल करा था दैट विल बी कॉल्ड। ठीक,
अब इसी का इन ऑर्डर करेंगे, तो इन ऑर्डर में सीक्वेंस क्या रहता है? इन ऑर्डर में हमारा सीक्वेंस क्या रहता है अगर ये ट्री है? Left, then root, then root, राइट then right. राइट, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवल करते जाते हैं, ठीक। तो हमारा एक कॉल क्या जाता है? इन ऑर्डर, जो आपका फंक्शन है इन ऑर्डर, रूट का लेफ्ट, रूट के मतलब रिकर्सिव कॉल भेजो, जो भी रूट है उसके लेफ्ट में जाते जाएंगे। कब तक के जाएंगे? जब तक हम लीफ नोड पे ना पहुंच जाए। फिर हम क्या करते हैं? लीफ नोड पे पहुंच के प्रिंट एफ रूट का डेटा, राइट। प्रिंट करने के बाद अब हम जब लेफ्ट पूरा ट्रैवर्स हो गया, राइट, तो हम रूट को प्रिंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके राइट सब ट्री को रिकर्शन कॉल करते हैं। तो हमारा क्या होगा? इन ऑर्डर रूट का राइट। ये तो हमारा ऑर्डर रहता था स्टेटमेंट्स का, जब हम इन ऑर्डर अभी कोड जिसका देखा था, राइट। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे सबसे पहले इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, राइट। तो हम 1 अभी अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसके लेफ्ट पे जाओगे 2 पे आएगा, ठीक। अब ये हमारा सब ट्री की तरह एक्ट करेगा, जिसमें रूट आपकी क्या है? 2 है, राइट। व्हाट यू विल डू अगेन, इसके लेफ्ट में अब आपने एक और रिकर्सिव कॉल भेजी 2 के लेफ्ट में जाने की, तो ये 4 पे जाएगा, ठीक। 4 पे पहुंचेगा। अब ये हमारा सब ट्री की तरह एक्ट करेगा, जिसके कोई भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ से हमारा नल रिटर्न होगा। लेफ्ट साइड को देखा, रिटर्न नल, ठीक। वापस इधर आएगा। फिर क्या है? प्रिंट द वैल्यू। प्रिंट द वैल्यू क्या होगी? रूट को प्रिंट करेगा, क्या है? 4 है। राइट चाइल्ड पे गया, 4 का कोई राइट चाइल्ड है नहीं, तो यहाँ से रिटर्न होके नल होगा। तो ये हमारा पूरा लेफ्ट सब ट्री 2 का ट्रैवर्स हो गया। अब ये रिटर्न होकर 2 पर आएगा। 2 पे रिटर्न होगा, तो व्हाट इट विल डू, आपका लेफ्ट ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया। प्रिंट एफ रूट का डेटा यानी 2 को प्रिंट करेगा। फिर अब आपका लेफ्ट सब ट्री पूरा हो गया, योर रूट नोड इज प्रिंटेड, नाउ इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में क्या करेगा? 5 को प्रिंट करेगा उसी तरह से रिकर्सिव वे में। फिर ये जब पूरा ट्री आपका ट्रैवर्स हो जाएगा, देन इट विल बी प्रिंटिंग योर रूट, राइट। आप ऐसे तो कर दो, इन ऑर्डर लेफ्ट, देन प्रिंट एफ रूट नोड, देन यू मूव टुवर्ड्स योर राइट नोड, ठीक, मतलब राइट सब ट्री, ठीक। तो फिर यहाँ पे अब राइट सब ट्री पे आएगा, वैल्यू 3 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रहेगा, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑर्डर एक बार आप खुद ट्राई करिएगा। तो एक बार जस्ट गो थ्रू द कोड फॉर इट। ना समझ में आए तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। इज इट ऑल राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो हाँ, तो हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपका ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। सिंपल है, जैसे ही नल तक पहुंची, मतलब लीफ तक पहुंच गए, तो वहां से रिटर्न करते जाते हैं, ठीक। अगर पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर में क्या रहता है? रूट सबसे आखिर में प्रिंट होता है। पहले लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवर्स करते हैं, फिर राइट सब ट्री को पूरा ट्रैवर्स करते हैं, फिर नोट पे आते हैं, नोट के डेटा पे आते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट कॉल जाती जाएगी जब तक कि आप रूट नोड तक, सॉरी लीफ नोड तक ना पहुंच जाओ। लीफ नोड पे जैसे ही उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल हो जाएंगे, तो हमारा रिटर्न कर जाएगा, ठीक। रिकर्शन में ये तो रहता है, फंक्शन कॉल इट सेल्फ, फिर रिटर्न करेगा। लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल हो गए तो वो प्रिंट कर देगा। तो लेफ्ट मोस्ट जो आपका लीफ नोड होगा उसकी वैल्यू प्रिंट करी, फिर लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवल हो जाएगा, देन इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर राइट सब ट्री। राइट सब ट्री को भी एक नई ट्री की तरह कंसिडर होता है, और उसके लेफ्ट एंड चाइल्ड को वो प्रिंट करेगा। तो यू विल बी रिकर्सिव फॉर टू द लेफ्ट subtree, then recursive for to the right subtree, then print the value of the node. इन ऑर्डर में हमारी प्रिंट स्टेटमेंट बीच में आ जाता है। क्यों? क्योंकि रूट हमारी बीच में प्रिंट होती है। पहले लेफ्ट सब ट्री को पूरा ट्रैवल करिए, फिर नोड की वैल्यू प्रिंट करिए, फिर आप राइट सब ट्री को पूरा ट्रैवल करिए। तो दिस इज योर रिकर्सिव कॉल टू द फंक्शन इटसेल्फ। क्यों रिकर्सिव कर रहे हैं? क्योंकि हर एक रूट नोड के नीचे जो दूसरा उसके चाइल्ड है, ठीक, वो भी क्या है? एक सब ट्री भी एक तरह का ट्री है जो सेम रूल को फॉलो करेगा, ठीक। So you can, with the help of recursive calls, repeated recursive calls, you will be able to implement this particular traversal. ठीक, traversal समझ में आ गया? Is it clear? Yes, ma'am. ठीक। एक हमारा स्पेशल टाइप का बाइनरी ट्री होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सर्च ट्री होता है, ठीक।
स्पेशल कैसे रहता है तो ये बाइनरी ट्री का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जो भी लेफ्ट सब ट्री में जितने भी आइटम्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स आपके लेफ्ट सब ट्री में होंगे, इनकी वैल्यू रूट नोड से हमेशा कम होगी, और जितने भी एलिमेंट्स राइट सब ट्री में होंगे उनकी वैल्यू रूट नोड से ज्यादा होगी। जैसे कि मान लिया रूट नोड 10 है, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड कितने हो सकते हैं, इससे वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक, तो 9 हो सकती है, ठीक। अब ये क्या है, ये खुद भी एक ट्री है, ये खुद भी एक सब ट्री है, तो इसमें अगर इसके और फर्दर चाइल्ड होंगे तो ये सेम रूल फॉलो करेगा, क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू उससे कम, यानी जैसे 7, ठीक, राइट चाइल्ड की वैल्यू उससे ज्यादा। अब यहाँ पे राइट चाइल्ड की इसका राइट चाइल्ड और हो नहीं सकता, क्योंकि 10 डालेंगे तो ये आपका रूट पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सपोज वैल्यू 8 है, ठीक, तो 10 हुआ, 10 से कम इसके लेफ्ट चाइल्ड में 8 आया, 8 अब खुद सब ट्री है, इसका लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू उससे कम यानी 7, इसके राइट चाइल्ड की वैल्यू 9 हो सकती है। तो यहाँ पे ये सब हर सब ट्री लेवल पे सेम रूल फॉलो हो रहा होगा। तो ये भी एक सब ट्री है जो सेम रूल कर रहा है कि लेफ्ट चाइल्ड वैल्यू लेस देन की, राइट चाइल्ड वैल्यू ग्रेटर देन की, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड ये सब ट्री पूरा ट्रैवल हो गया, ये आपका रूट हो गया। अब इसका अगर राइट चाइल्ड होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 11, या आप इसका जो 11 क्या, आप इसको 12 लीजिए, ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन 10, तो ये राइट सब ट्री में आएगा। अब अगर ये इसकी खुद भी चाइल्ड है तो 12 से जो वैल्यूज जितनी कम होंगी, मान लिया 11, ठीक, तो इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, एंड वैल्यूज ग्रेटर देन 12, मान लिया 14, इट विल बी ऑन द राइट साइड। तो बाइनरी ट्री है, लेकिन क्या रूल है कि जितने भी लेफ्ट चाइल्ड होंगे उनकी वैल्यू की से कम होगी, जो रूट है उससे कम होगी, और राइट चाइल्ड की वैल्यू रूट से ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल्स ये हैं आपके, एक सिंगल नोड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका रूल फॉलो ही कर रहा है। अगर आपका हाइट 1 का आपका ट्री है तो यहाँ पे कैसे हो सकती है, राइट चाइल्ड वैल्यू ग्रेटर देन रूट, क्या है हमारा 17 है, राइट चाइल्ड की वैल्यू 17 से ज्यादा, लेफ्ट चाइल्ड की 17 से कम, ठीक। अगर हाइट 2 का हमारा ट्री है, मान लीजिए कि ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है, जहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड जितने भी है सबकी वैल्यू 17 से कम है, राइट चाइल्ड ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट चाइल्ड है तो वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक। बड़ी या इसके बराबर, राइट चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू योर रूट नोड, ठीक। ये बाइनरी सर्च ट्री है, बताइए क्लास। हाँ, कैसे है, यस मैम। हर जगह पे सेम रूल फॉलो हो रहा है। अगर 17 है आपका रूट, इसका लेफ्ट क्या है 6 लेस देन 17, वेरी गुड। अब ये आपका एक सब ट्री है, ठीक, इसमें क्या है, लेफ्ट चाइल्ड 3 वैल्यू 6 से कम है, राइट चाइल्ड की वैल्यू 6 से ज्यादा है। फिर ये पूरा लेफ्ट सब ट्री आपने देख लिया, रूट नोड 17 है, अब जो राइट में आएगा उसकी वैल्यू 17 से ज्यादा होगी 19, ठीक। इसको और एक्सटेंड कर सकते थे, 19 से बड़ी वैल्यू अगर आती तो वो 19 का राइट चाइल्ड बनती, 19 से कम वैल्यू आती तो वो 19 का लेफ्ट चाइल्ड बनती, लेकिन 17 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे और हम एक्सटेंड क्या कर सकते थे, यहाँ पे 22 डाल सकते थे, 18 को इधर डाल सकते थे। तो ये समझ में आ गया बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बताइए। अच्छा, अब बताइए बाइनरी सर्च ट्री का फायदा क्या है। अगर आपको याद हो, हमने एक एल्गोरिथम पढ़ी थी, कौन सी, अच्छा ये सब हम ट्रीज क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ही तो है, इसमें क्या आप करते हैं, आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ठीक। और डेटा स्ट्रक्चर हमें डिपेंडिंग अपॉन विच ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग, हम उस हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर को चूज करते हैं, ठीक। क्यों चूज करते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस मिनिमाइज हो, एफिशिएंसी हो, ठीक, एफिशिएंटली हम डेटा को एक्सेस कर पाए, उनके ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। बाइनरी सर्च ट्री को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा क्या फायदा हो सकता है, हमारी सर्चिंग ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती है, सर्चिंग हमारी बेटर नहीं हो सकती है, बताइए। यस, बाइनरी, हाँ, सर्चिंग क्यों आसान हो जाएगी, मान लिया हमें कोई वैल्यू सर्च करना है, से 12, हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक। हमें सर्चिंग हम क्या करते थे, एरे में क्या करना पड़ता था, लीनियरली सर्च करना पड़ता था, या लिंक लिस्ट में भी क्या करना पड़ता था, लीनियर सर्च करना पड़ता था। या एरे में अगर स्टोर करते तो क्या आता, 43, 10, 79, 90, 12, तो आप क्या करते, एक एक इंडेक्स को ट्रैवर्स करते, लूप पे चलाते और मैच कराते कि अच्छा फॉर आई इक्वल टू 1 से लेकर
10 तक या जितने भी एलिमेंट्स हैं, फिर आप क्या करते हैं, जिस एलिमेंट को सर्च करना है तो आप एरे के इंडेक्स एक एक एलिमेंट को सर्च कराते, क्या 12 के बराबर है जिस एलिमेंट को सर्च करना है, ये तो करते। तो क्या होता, इसकी सर्चिंग क्या आती, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन रहती। ऑर्डर ऑफ एन मतलब जितनी अभी इस एरे का लेंथ है वर्स्ट केस में, ठीक, हो सकता है ये 12 एलिमेंट, 12 की जगह आपको 50 सर्च करना पड़ता है, तो आपको सारे एलिमेंट से मैचिंग करानी पड़ती, तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, ठीक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे इजीनेस आ जाएगा। कैसे इजीनेस आ जाएगा कि हम हमेशा रूट से कंपेयर करते जाएंगे, तो हमें पता चलता रहेगा हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक। जैसे अगर हमें 12 को सर्च करना है, ठीक, तो हम पहले रूट नोड पे आए, क्या रूट नोड के बराबर है, नहीं है। इज इट ग्रेटर देन रूट नोड और लेस देन रूट नोड, इट इज लेस देन रूट नोड। तो हमें पता है कि हमें अब इसके लेफ्ट चाइल्ड पे ट्रैवर्स करना है, राइट चाइल्ड पे हमें जाने की जरूरत नहीं, तो हमारा एड्रेस स्पेस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट। तो अगर एक एवरेज केस की बात करी जाए सर्चिंग की, तो हमें कितना टाइम लगेगा एवरेज केस में, इट विल टेक योर ऑर्डर ऑफ log n, जो अब हमें पूरा का पूरा ट्री ट्रैवर्स करना पड़ता था एवरेज केस में, यहाँ पे हमें क्या होगा कि हो सकता है हमारी एड्रेस स्पेस हमेशा आधी रिमूव हो जाए, ठीक। लेकिन एक हमारे साथ प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमारा बाइनरी सर्च ट्री स्क्रूड है। स्क्यूड मतलब क्या हुआ, स्क्यूड हमारे वो ट्रीज रहते हैं जिसमें जो एक ही साइड ग्रो करे, ठीक। मान लिए इस तरह का ट्री है 43, 44, ये भी तो बाइनरी ट्री है, 45, ठीक, 46, ये भी तो बाइनरी ट्री है। क्या है, राइट चाइल्ड की वैल्यू हमेशा रूट से ज्यादा है, तो यहाँ पे तो हमें अभी भी पूरा का पूरा डेप्थ तक जाना पड़ेगा, यानी ऑर्डर ऑफ एन जितने नंबर ऑफ नोड्स है उतने ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो इसको और इम्प्रूव करने के लिए बाइनरी सर्च ट्री को हमारे पास बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री आते थे। बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से आप ग्रो ना करिए, हमेशा जितने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो सब ट्री के हैं उनका डिफरेंस कभी 0, 1 या शुड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 1, 0, 1 या -1 के बराबर। तो बैलेंस बाइनरी ट्री जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंपल है, रूट